اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ دیویندر ستیارتھی کی کہانی ہاتھی پھرے گاؤں گاؤں۔ اندرا کا ہاتھی تھا ایراوت۔ اس کا رنگ روپ کیسا تھا، سوبھاؤ کیسا تھا، یہ مت پوچھیے۔ ایراوت کی تصویر پیش کر سکنا میرے بس کا روگ نہیں۔ یہ تو ایک انسان کا قصہ ہے۔ اجازت ہو تو عرض کروں۔ نام ہے سداما، زبان بڑی پیاری ہے۔ ان کی عمر کا پل بہت مضبوط معلوم ہوتا ہے۔ اس کے نیچے سے 50 سال اس پار چلے گئے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکے ہیں، جگہ جگہ کی کہانیاں سناتے تھکتے نہیں۔ لیکن اب تو راجدھانی سے ایسے چپک گئے ہیں جیسے ان کا ان جل اب ہمیشہ کے لیے اسی شہر کے ساتھ بندھ گیا ہو۔ بات بات میں یہی رٹ لگاتے ہیں کہ ان جل پر مہر لگی رہتی ہے اور اسے چھوڑ کر جانا کسی طرح ممکن نہیں۔ میں سوچنے لگتا ہوں، یہ شخص ایک طرف اتنا وسیع تجربہ رکھتا ہے کہ اس کے پیچھے زیادہ نہیں تو 30 سال کی لمبی یاترائیں نظر آتی ہیں، جیسے یہ پہاڑیوں کا لمبا چوڑا سلسلہ ہو اور دور تک چلا گیا ہو، اور دوسری طرف یہ شخص ان جل کا فلسفہ لے بیٹھتا ہے جس کے مطابق اب اسے راجدھانی میں ہی رہنا چاہیے۔ کبھی کارلائل کے حوالے سے کہتے ہیں، محنت ہی بہت بڑی عبادت ہے۔ کبھی کنفیوشس کے سنہری قول کا ذکر خیر کرتے ہیں، صداقت انسان کو عظیم نہیں بناتی، انسان صداقت کو عظیم بناتا ہے۔ کبھی اپنشد کے مطالعے سے نکال کر لے آتے ہیں ایک انمول موتی، آنند سے ہی سارے سنسار میں جیو ماتر کا جنم ہوا ہے، اور انت میں تان اسی بات پر توڑتے ہیں، سب ان جل کی بات ہے۔ اب میں یاترا پر نہیں نکل سکتا، گھر بیٹھے کلپنا کے ہاتھی پر چڑھ کر دور دور نکل جاتا ہوں۔ سچ پوچھو تو سداما جی کا یہی ہاتھی میرے من کو بھا گیا ہے۔ ہماری پہلی ملاقات اتنی دلچسپ رہے گی، اس کی میں نے کلپنا بھی نہ کی تھی۔ گلی سے بچوں کے گانے کی آواز آ رہی تھی، ہاتھی گھوڑا پال کی، جے کنہیا لال کی۔ چھوٹتے ہی سداما جی بولے، بچپن میں ہم نے بھی گایا تھا یہ گیت۔ میں نے کہا، اب تو ہاتھی گھوڑا پالکی کا زمانہ نہیں رہا۔ سداما جی اٹھ کر بک شیلف سے ایک کتاب نکال لائے۔ میں نے غور سے دیکھا، یہ آب حیات کی ایک پرانی جلد تھی۔ وہ ورق گردانی کرنے لگے۔ میں نے کہا، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تھوڑا صبر کیجئے۔ وہ بولے، ابھی دکھاتا ہوں، مل جائے صحیح، پھر دیکھیے، مزہ نہ آئے تو کہیے۔ کیا کہا آپ نے؟ اب تو ہاتھی گھوڑا پالکی کا زمانہ نہیں رہا۔ کمبخت ملتا کیوں نہیں؟ لال پینسل سے نشان لگا رکھا ہے، ملے گا ضرور، ملنا ہی چاہیے۔ جی ہاں، ضرور ملنا چاہیے۔ وہ دیر تک ڈھونڈتے رہے اور پھر خوشی سے ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ لیجئے، مل گئی وہ چیز جو میں دکھانا چاہتا تھا۔ ارشاد۔ میں مسکرایا۔ وہ بولتے چلے گئے۔ ایک تو وہ اوج کا زمانہ تھا کہ سعادت علی خاں کی ناک کے بال تھے۔ اپنے کمال لیاقت اور شگفتہ مزاجی کے سبب سے مرجع خلائق تھے۔ دروازے پر گھوڑے، ہاتھی، پالکی، نالکی کے ہجوم سے رستہ نہ ملتا تھا۔ پالکی تو ہوئی، میں نے ٹوکا، یہ نالکی کیا ہوئی سداما جی؟ نالکی نہیں سمجھتے؟ سداما جی کو جیسے میرے سوال سے صدمہ ہوا تھا۔ نالکی یعنی کھلی پالکی، اس کو تام جھام بھی کہتے تھے۔ اور پھر انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، تو کیا اب یہ لفظ محض لغات میں ہی سسکتے رہیں گے؟ خیر چھوڑیے۔ اور وہ پھر پڑھنے لگے۔ دوسری وہ حالت کہ پھر جو لکھنؤ گیا تو دیکھا کہ ظاہر درست تھا مگر درخت اقبال کی جڑ کو دیمک لگ گئی تھی۔ اور پھر جیسے کسی بے لطفی کا احساس کرتے ہوئے بولے، انشا کا ذکر خیر کرتے ہوئے آزاد نے اس زمانے کی تصویر پیش کی ہے۔ میں نے بڑے ادب سے کہا، انشا بھی کیا خوب انسان تھے سداما جی۔ آزاد نے وہ منظر بھی تو پیش کیا ہے کہ کس طرح انشا ایک مشاعرے میں پہنچے جس میں ابھی 200-300 آدمی ہی آئے تھے۔ مشاعرہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ایک شخص روئی دار مرزائی پہنے آیا اور السلام علیکم کہہ کر بیٹھ گیا۔ کسی نے اس سے مزاج پرسی بھی کی۔ اس نے اپنے چلم میں تمباکو بھرا اور تھوڑا سلفا جمایا اور کہا کہ بھائی ذرا سی آگ ہو تو اس پر رکھ دینا۔ سداما جی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا اور کتاب کا اگلا ورق پلٹ کر پڑھنے لگے۔ اسی وقت آوازیں بلند ہوئیں اور گڑگڑی سٹک پیچوان سے لوگ تواضع کرنے لگے۔ وہ بے دماغ ہو کر بولا کہ صاحب ہمیں ہمارے حال پر رہنے دو، نہیں تو ہم جاتے ہیں۔ سب نے اس کی بات کے لیے تسلیم اور تعمیل کی۔
दम भर के बाद फिर बोला कि क्यों साहब, अभी मुशायरा शुरू नहीं हुआ? लोगों ने कहा कि जनाब, लोग जमा होते जाते हैं, सब साहब आ जाएं तो शुरू हो। वो बोला कि साहब, हम तो अपनी गज़ल पढ़े देते हैं। ये कहकर तोबड़े में से एक कागज़ निकाला और गज़ल पढ़नी शुरू कर दी। कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। मैंने कहा, कितनी बड़ी हकीकत है, कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं। सुदामा जी जैसे किसी कल्पना में खो गए और फिर संभल कर किताब परे रखते हुए बोले, इतनी जल्दी तो अभी रुखसत होने का हमारा इरादा नहीं है। हाँ, तो बात चली थी हाथी घोड़ा पालकी की। आपने कहा उनका ज़माना नहीं रहा। ये तो ठीक ही कहा आपने, लेकिन इसका भी क्या उपाय किया जाए कि अदब में अदीबों ने उस ज़माने की तस्वीर पेश कर रखी है और ये तस्वीर मुंह से बोलती है। इसके बाद चाय का दौर चला। तिपाई पर एक राखदानी पड़ी थी जिस पर मुगलई नक्काशी का खूबसूरत नमूना पेश किया गया था। दीवार पर एक तरफ मोहनजोदड़ो दौर की नर्तकी की तस्वीर लगी थी तो दीवार गिर पर जदीद तरीन डिज़ाइन का टाइम पीस पड़ा था। हमारे सामने जो टी सेट मौजूद था वो भी जदीद कारीगरी का खूबसूरत नमूना था। सुदामा ने चाय का घूंट भरकर कहा, अब मैं तो यही फैसला नहीं कर पाता कि 5000 बरस पुरानी उस नर्तकी की तरफ देखूं या जदीद तरीन टाइम पीस की दाद दूं। मैंने हंसकर कहा, सुदामा जी, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह नुमाइंदा हैं। सुदामा जी जैसे किसी सोच में डूब गए, फिर संभल कर बोले, वो एक कहानी है ना, सौतेली माँ ने अपनी सौत के लड़के लड़की को घर से निकाल कर एक जंगल में भेज दिया था। जानते हो लड़के लड़की ने जाने अनजाने अक्ल से कौन सा काम कर डाला था? जंगल में तो चले गए दोनों भाई बहन, लेकिन जाते जाते रास्ते भर एक एक कंकर गिराकर अपने रास्ते पर निशान लगाते गए। सच पूछो तो पुराने वक्तों की ये चीज़ें भी उस ज़माने की निशानियां हैं जिनकी मदद से वो ज़माना चाहे तो लोक कथा के भाई बहन की तरह जंगल से घर लौट सकता है। चाहे वो मोहनजोदड़ो की नर्तकी हो, चाहे मुगलिया दौर की राखदानी। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या बीता हुआ समय वापस लौट सकता है? और मैंने देखा कि सुदामा जी फिर किसी सोच में डूब गए। अब जो अपनी कल्पना की लहरों से बाहर निकले तो अपने साथ शायर की ज़बान लेते आए और बड़े अंदाज से गुनगुनाने लगे, वो बादए शबाना की सरमस्तियाँ कहाँ, उठिए बसब के लज्जत ख्वाबे सहर गई। मैंने कहा, वो कहानी तो आपने ज़रूर सुनी होगी, एक संगीतकार की कहानी। गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ एक रियासत में पहुंचे। राजा साहब ने गुरुजी के संगीत पर खुश होकर मोहरें लुटा दी। एक दिन जब राजा साहब ने सुना कि गुरुजी मंदिर में बीमार पड़े हैं तो वो खुद चलकर उनका समाचार पूछने के लिए आए। शिष्य उदास बैठा था, बहुत से भक्त लोग जमा थे। बड़े जतन से गुरुजी को होश में लाया गया। वो बोले, मुझे तो कोई कष्ट नहीं। इशारे से उन्होंने शिष्य को विचित्र वीणा बजाने की आज्ञा दी। शिष्य विचित्र वीणा पर गुरुजी का दिल पसंद राग बजाने लगा। उसे सुनते सुनते गुरुजी ने आंखें बंद कर लीं और फिर पता चला कि गुरुजी संगीत के पथ पर चलते चलते अब इतनी दूर निकल गए कि वापस आना नामुमकिन है। ठीक फरमा रहे हैं आप, सुदामा चाय का तीसरा कप तैयार करते हुए कहने लगे। काश किसी की मौत इतनी ही खूबसूरत हो सकती। मौत के बारे में किसी का यह कौल मुझे बेहद पसंद है। जैसे माँ बच्चे को एक तरफ का दूध पिलाकर ये सोचती है कि शायद इधर इतना दूध नहीं रहा, वो दूसरी तरफ का दूध पिलाना चाहती है और बच्चा रोता है कि माँ ने उसके मुंह से अपना दूध क्यों छुड़ा लिया। वो झट रोना बंद कर देता है जब देखता है कि माँ ने दूसरी तरफ का दूध उसके मुंह में थमा दिया। वाह सुदामा जी, मौत के बाद झट जिंदगी शुरू होने की इससे बढ़िया दलील नहीं हो सकती। ये कहते हुए मैं उठ खड़ा हो गया। घर लौटते हुए मेरे दिलो दिमाग से बार बार ये आवाज़ आती रही कि सुदामा जी बहुत सुलझे हुए मजाक के इंसान हैं। बाद की मुलाकातों से मुझे ये पता चलते देर न लगी कि सुदामा जी की ज़िंदगी में वो दिन तो हरगिज़ नहीं आ सकते जब उन्हें रोटियों के लाले पड़ जाएं, लेकिन ताज़ा कमाई की कमी के मारे वो परेशान ज़रूर रहते हैं। ड्राइंग रूम की आराइश और सजावट पुरानी पड़ती जा रही थी। सोफे का कपड़ा जो बहुत पहले ही बदल दिया जाना चाहिए था, अब तक सुदामा जी के ज़ौक़ का मुँह चिढ़ा रहा था। फर्श पर जो ईरानी कालीन बिछा हुआ था उसमें जगह जगह मरम्मत की ज़रूरत थी। कई बार वो उसे यहाँ से उठा देने का फैसला करते करते रुक जाते, जैसे वो उस पुरानी यादगार के गुलाम होकर रह गए हों। उनके बच्चों की माँ उन्हें छोड़ गई थी। उसके पीछे क्या कहानी थी ये मुझे मालूम न हो सकी। बच्चे अपने कदमों पर खड़े हो चुके थे और उनसे अलग रहते थे। अपने नौकर से भी सुदामा जी बहुत खुश तो न थे, लेकिन अब इस उम्र में नई बीवी लाने का भी तो कोई सवाल न था। अपने बच्चों के बारे में वो कई बार कह चुके थे,
उनसे मैं यही कहता हूँ, मुझ पर अब तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम मेरी खिदमत करो। मैं ये भी नहीं कहता, बस इतना ज़रूर कहता हूँ, मुझ पर रहम करो, मुझसे कुछ मांगो मत। वैसे वो जानते थे कि कानून के मुताबिक उनका घर उनके बच्चों के हिस्से में आकर रहेगा, बस उनके आंखें बंद करने भर की देर है। ये ख्याल क्यों उनके लिए एक चुभन बनकर रह गया, ये समझना मेरे लिए आसान नहीं। वो किसी से कम ही मिलते जुलते थे, लिखते भी बहुत कम थे। हालांकि जब भी उनसे मैं मिला, एक नया ख्याल लेकर लौटा। उनकी बातें सुनते हुए मुझे हमेशा ये एहसास हुआ कि राजधानी की एक बेलाग शख्सियत यूं ही बर्बाद हुई जा रही है। ये शख्स जो इतना घूमा फिरा है, जो कई मैगजीनों का मुदीर रह चुका है, जो बहुत सी किताबों का मुसन्निफ है और जो चाय के प्याले में तूफान उठा सकता है, ये अपनी ही दुनिया में क्यों सिमट कर रह गया? ये सवाल मुझे हर बार बुरी तरह कुरेदने लगता। सुदामा जी के ड्राइंग रूम के पुराने सोफे पर बैठकर पुराने ईरानी कालीन की हालत जार पर तरस खाते हुए मैं कई बार सोचता कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारे सुदामा जी किसी महफिल में एक अच्छी खासी तकरीर करें और सुनने वाले उन्हें घेर कर खड़े हो जाएं और इस बात का इकरार करें कि अब आइंदा वो अपने उस महबूब मुसन्निफ को छुप कर घर में बैठने ही नहीं देंगे। कई बार बातों बातों में सुदामा जी ने साफ लफ्जों में कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए, अपने राम की अब गहने पहनने की उम्र नहीं रही, और वो खिलखिलाकर हंस पड़ते। लेकिन मुझे ये भांपते देर न लगी कि सुदामा जी ये ज़रूर चाहते हैं कि किसी तरह अपने ड्राइंग रूम को नए ढंग से सजाने में कामयाब हो जाएं। ये बात मेरी समझ में ना आती थी कि सुदामा जी ने लिखने से क्यों मुंह मोड़ लिया। हालांकि वो मानते थे कि 40 बरस की उम्र पार करने पर ही इंसान कोई काम की बात लिख सकता है। अब तो उनकी उम्र 50 से ऊपर थी, और ये भी हकीकत थी कि पिछले 3 बरस से उन्होंने डट कर लिखना तो दूर रहा, महीने में 2-1 कहानियों और 4-5 मज़ामीन की औसत निभाने की तरफ भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। खुददारी का ये जुनून कितना ख़तरनाक था, और हमेशा ये सोचते रहना कि कोई पब्लिशर रॉयल्टी की पेशगी रकम देकर या कोई एडिटर एक कहानी या मजमून के लिए 7-7 चिट्ठियाँ लिखकर उनकी कल्पना को गुदगुदाए, कितना गलत था। इस तरफ उनकी तवज्जो जाती ही न थी। कार्लाइल का ये ख्याल कि मेहनत ही बहुत बड़ी इबादत है उनके हाथ से क्यों निकल गया, ये बात मेरे लिए कुछ कम तशवीशनाक न थी। कई बार मैं उनसे कहता, देखिए सुदामा जी, कन्फ्यूशस के इस ख्याल में तो आपका विश्वास बराबर बना हुआ है ना कि सदाकत इंसान को अजीम नहीं बनाती, इंसान सदाकत को अजीम बनाता है। वो सामने से हमेशा हाँ में सर हिलाते, लेकिन मेरा इशारा समझकर भी वो मेरी बात को अनसुनी कर जाते और कलम उठाकर फिर से अदब के मैदान में कूद पड़ने का अहद करने के रास्ते में न जाने क्या रुकावट आ जाती। सुदामा जी के यहाँ जाऊं और उनकी ज़बान से फूल न झड़ें, ये तो नामुमकिन है। कलम से भले ही काम न लें, जिंदगी को वो बहुत बड़ा वरदान मानते हैं। उनका अदबी सरमाया उन्हें बकाए दवाम समझने के लिए काफ़ी है। ये तो वो खुद भी नहीं मानते। फिर मैं ये सोचकर हैरत ज़दा रह जाता हूँ कि सुदामा जी कलम उठाकर लिखने क्यों नहीं बैठ जाते। उनकी कल्पना की उड़ान बातों में उनका साथ देती है, तो क्या तहरीर में वो पीछे रह सकती है? ज़बान पर उन्हें पूरा अबूर हासिल है। ज़बान को नया रंग रूप देने की शक्ति भी उनमें नज़र आती है। अपने हाथ से नहीं लिखना चाहते तो बोलकर ही लिखवाना शुरू कर दें। यह खिदमत मैं सर अंजाम दे सकता हूँ। लेकिन इसके जवाब में वो हमेशा वाह रे मैं ये कहकर हंस छोड़ते हैं। या तो सुदामा जी की वक़्त ही ना होती इस हद तक मेरी कल्पना में, या फिर वो नए अदब के मेमार बनने का तहैया कर लेते। ऐसा क्यों नहीं होता, ये सोचकर मेरी आंखें पुरनम हो जाती हैं। अभी अगले ही रोज़ सुदामा जी अपनी एक समुंदर यात्रा का एक किस्सा ले बैठे और फिर छूटते ही बोले, सागर मंथन की कहानी भी कितनी दिलचस्प है। सागर से 14 रतन निकले थे, उनमें एक लक्ष्मी भी थी जिसे विष्णु भगवान ने अपना लिया। सागर से अमृत भी निकला और बिस भी। अमृत के लिए झगड़ा शुरू हो गया, बिस पीने को कोई तैयार ना हुआ। सारे का सारा बिस शिव ने अपने मुंह में उंडेल लिया, लेकिन उसे कंठ से नीचे ना जाने दिया। इसी से वो नीलकंठ बन गए। मैंने भी जिंदगी का बिस पिया है, मैं भी नीलकंठ हूँ। मैंने कहा, सुदामा जी यही उन्वान रखिए, मैं भी नीलकंठ हूँ, ज़रूर लिख डालिए। वाह रे मैं, सुदामा जी ने जोर का कहकहा लगाया। फिर वो देर तक इस बात पर व्याख्यान देते रहे कि धरती का भी तो सागर से जन्म हुआ। वो इस मंजर की देर तक तारीफ करते रहे जब समुंदर का पानी तो स्याही माइल नीला मालूम होता है और कई कई गज ऊंची उठती लहरें साहिल की रेत को गोया चांदी के झूमर पहना देती हैं। और फिर वो अपनी बुक शेल्फ से एक किताब निकाल लाए और बोले, ये रहा टैगोर के खुतूत का एक मजमुआ। इसका पहला ख़त मुझे बेहद पसंद है, इसे पढ़िए। मैंने बड़े अदब से कहा,
आप भी सोचते होंगे कि मेरा ये किताबों का कीड़ा बने रहने का खब्त कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो कहते चले गए। कभी कभी तो मेरा दिमाग कहता है कि आजकल लिखने वालों की तादाद इतनी बढ़ती जा रही है कि ये डर पैदा हो गया है कि कहीं वो पढ़ने वालों की तादाद से बढ़ ना जाए। ये कहते कहते वो खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर ज़रा संभल कर बोले, खैर छोड़िए, आप ये ख़त पढ़कर सुनाने वाले थे, ज़रूर सुनेंगे। वो मुस्कुराए। अच्छा तो लीजिए, ये अदबी खतूत का मजमुआ मुझे बेहद पसंद है। इस किताब का नाम है छन्न पत्र, यानी टूटे हुए पत्ते। ये ख़त जिससे ये किताब शुरू होती है 30 अक्टूबर 1885 को लिखा गया था। तब गुरुदेव की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं रही होगी। वो लिखते हैं, सागर को देखकर मुझे मालूम होता है कि कोई बहुत बड़ी नामालूम शक्ति बंधन में पड़कर उछल कूद मचा रही है और हम लोग किसी चिंता के बिना किनारे पर खड़े हैं। सागर के खुले हुए मुंह में हम लोग घर बार बनाकर बैठे हैं। हम लोग गोया शेर की अयाल पकड़कर खींच रहे हैं, तो भी ये बेसहारा शेर कुछ भी नहीं बोल पाता। एक बार अगर पूरा सागर छुटकारा पा जाता तो हम लोगों का फिर कोई निशान भी न रहता। पिंजरे में बाघ अपनी दुम इधर उधर पटक रहा है, हम लोग 2 हाथ दूर रहकर खड़े खड़े हंस रहे हैं। ये तो ठीक ही लिखा है गुरुदेव ने। फिर आगे जाकर गुरुदेव लिखते हैं, जमीन और सागर में लड़ाई चल रही है। जमीन धीरे धीरे चुपचाप एक एक कदम उठाकर अपनी संतान को धीरे धीरे आगे बढ़ाती जा रही है और हारा हुआ सागर पीछे हटता हुआ सिर्फ फुसफुसाता हुआ छाती पर हाथ मारकर बेहाल हो रहा है। याद रखिए, किसी जमाने में सागर का राज था। उस समय वो पूरी तरह स्वतंत्र था। उसके गर्भ से जन्म लेकर धरती ने उसका सिंहासन छीन लिया है। पागल बूढ़ा सागर अपने झाग को लिए हुए किंग मेयर की तरह आंधी पानी में खुले आकाश के नीचे बिलाप कर रहा है। ये तो बहुत पते की बातें हैं सुदामा जी। आपने भी तो किसी सागर यात्रा को लेकर ऐसा कोई अनुभव दिया होता। मेरी कल्पना का हाथी भी फिरता रहता है मंजिल ब मंजिल। सुदामा जी गंभीर हो गए। उसे रोकने वाला तो आज तक पैदा नहीं हुआ। मेरे पीछे हैं मेरी यात्राएं, उन्हें कौन छीन लेगा। लेकिन इस हाथी को पीछे जाने की बजाय आगे आना चाहिए। इसका उन्होंने कुछ जवाब न दिया। नौकर चाय लाया, उन्होंने चाय को हाथ न लगाया। उनका इशारा पाकर उस रोज मैंने दोनों प्यालों में चाय उंडेली। उनसे पूछकर उनकी हस्बे मंशा उनके प्याले में आधा चमचा चीनी डाली। लेकिन वो कुछ इतने उदास हो गए कि चाय का प्याला मेज पर पड़ा पड़ा ठंडा हो गया। उन्होंने महज ये कहकर बात टाल दी, आज मैं चाय ना पीऊं तो अच्छा होगा। अंदर से तबीयत ठीक न हो तो चाय उल्टा नुकसान करती है। मैंने कहा, गुरुदेव ने सागर के संबंध में इतने सुंदर विचार दिए, तो क्या आप कुछ भी नहीं लिख सकते थे? वाह रे मैं, कहते हुए उन्होंने कहकहा लगाया और फिर संभल कर बोले, जब हम किसी मंदिर की यात्रा पर जाते हैं तो पहले बड़े पूजा भाव से मंदिर के चारों तरफ घूमकर परिक्रमा करते हैं और फिर मूर्ति के दर्शन करते हैं। मैं कहता हूँ, लेखक की आत्मा सरस्वती की मूर्ति के गिर्द कई कई जन्म परिक्रमा करते गुजार देती है, तब कहीं कोई लेखक टैगोर बन पाता है। ये तो ठीक है सुदामा जी, मैं भी मानता हूँ कि गुरुदेव टैगोर हमारे देश के अदब में सूरज बनकर चमके, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम दिए बनकर चमकने को जरा भी अहमियत न दें। वाह रे मैं, सुदामा जी हंस पड़े और फिर जरा संभल कर ये शेर गुनगुनाने लगे। हुए मर के हम जो रुस्वा हुए, क्यों न गर्क़े दरिया, न कहीं जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। मैंने कहा, अगर मेहनत ही बहुत बड़ी इबादत है, अगर सदाकत इंसान को अजीम नहीं बनाती, इंसान सदाकत को अजीम बनाता है, अगर ये सच है कि आपके पीछे 30 साल की लंबी यात्राएं हैं, अगर सब अन्न जल की बात है, उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, और देखिए उपनिषद की वो बात भी मत भूल जाइए, आनंद से ही सारे संसार में जीव मात्र का जन्म हुआ है। तो आपने लिखना क्यों छोड़ दिया? आनंद के लिए ही सही, लिखिए तो। वाह रे मैं, वो फिर हंस पड़े और फिर जरा संभल कर बोले, मैंने उस दिन क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि इस देश में लिखने वालों की तादाद पढ़ने वालों के मुकाबले में बहुत बढ़ने लगी है। इस पर मुझे हंसी आ गई। सो तो ठीक है। और फिर मैंने गंभीर होकर कहा, आप यहाँ अकेले पड़े रहते हैं, इतनी तन्हाई भी अच्छी नहीं, या फिर इस तन्हाई से लाभ उठाइए। मेरा मतलब है आपकी तन्हाई से हमें लाभ पहुँचना चाहिए। वाह रे मैं, वो जोर से हंस पड़े। मालूम होता था कि हमारा किसी नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं। मैं इजाज़त लेकर चला आया। आखिर मैंने एक दिन अपना फ़र्ज़ पहचाना। मैंने एक पब्लिशर को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो सुदामा जी को एक ख़त लिखे और छूटते ही ये वादा कर दे कि अगर वो अपनी यात्राओं की कहानी को समोते हुए एक ज़ख़ीम आप बीती लिख दें तो उन्हें इसके लिए 15% रॉयल्टी की ज़मानत दी जा सकती है।
सुदामा जी को ये पता न चलने दिया गया कि इस खत के पीछे मेरा हाथ है। अगले ही दिन मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे वो खत दिखाया। मैंने सलाह दी कि वो फौरन उस पब्लिशर को रजामंदी का खत लिख दें। वो हंसकर बोले, वाह रे मैं, और फिर संभल कर बोले, किताब का नाम क्या होना चाहिए? नाम तो आप ही रखेंगे। अब इस वक्त तो कोई नाम सूझ ही नहीं रहा। ये बाद में देखा जाएगा। आप खत का जवाब तो लिख दीजिए। उस दिन मेरे बार बार जोर देने पर भी उन्होंने जवाब न लिखा। मैंने कहा, तो अगर किसी रोज पूछते पूछते वो पब्लिशर यहाँ आ निकला तो उस पर आपका क्या रोप पड़ेगा? आपका मतलब है ड्राइंग रूम सजाना चाहिए। बिल्कुल ठीक समझे आप। अगले रोज मैं वहां पहुंचा तो देखा कि सोफे के लिए नया कपड़ा आ गया है और पुराना ईरानी कालीन भी उठा दिया गया। उसकी जगह वो कमरे के साइज का नया कारपेट खरीद लाए थे। भले ही ये जूट की रस्सियों से तैयार किया गया था। बोले, अब मैं तैयार हूं, भले ही वो पब्लिशर कल आ जाए। मैंने कहा, अच्छा हो कि किताब का पहला बाब भी आप आज रात लिख डालें। वाह रे मैं। वो हंस पड़े और फिर संभल कर बोले, मैं जतन करूंगा। अगले दिन मैं शाम के वक्त टैक्सी लेकर उनके यहाँ पहुंचा। मैंने कहा, देखिए, आज वालगा में एक दावत है जिसमें फ्रांस के एक अदीब का स्वागत किया जा रहा है। आप भी चलिए। आपका फ्रांस के उस अदीब से तारुफ कराया जाएगा, क्योंकि जैसे आपने यहाँ हमारे देश में 30 बरस की यात्रा की, पिछले 15 बरस से वो अदीब भी सारे यूरोप और एशिया के चक्कर लगा रहा है। वो तैयार हो गए। टैक्सी में बैठे बैठे उन्होंने मुझे बताया कि आप बीती का पहला बाब मैंने लिख डाला। ये तो बहुत अच्छा हुआ। वहाँ वो पब्लिशर भी तो होगा। मीटिंग के बाद उसे हमारे यहाँ लेते आएंगे। वो हंस पड़े। वाह रे मैं। वालगा में पहुंचने पर सबसे पहले उन्हें खींचकर उस सोफे पर मैं ले गया जहां वो पब्लिशर बैठा था। उन्होंने अपनी आप बीती का पहला बाब जेब से निकालकर दिखाते हुए कहा, आज ही मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दूंगा। पब्लिशर की आंखें चमक उठीं। वो बोला, किताब का नाम बहुत अच्छा सा होना चाहिए। किताब या तो नाम अच्छा होने पर बिकती है या टाइटल की तस्वीर खूबसूरत होने पर। टाइटल का इंतजाम मैंने कर लिया है। किताब का नाम क्या रखा जाए? सुदामा जी ने गंभीर होकर कहा। लेकिन अगले ही लम्हे हाथ से काजू की प्लेट मेज पर रखते हुए वो खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह रे मैं, लीजिए, ये नाम अच्छा रहेगा और किताब खूब बिकेगी। बस यही नाम रखिए, हाथ ही फिरे गाँव गाँव।